Welcome to CPL Ground Classes, brought to you by Aviatics Academy. For all of those who are new here, let me give a small introduction on myself first. I am Captain Preeti Mehadia, a CGI. I have been imparting classes from past 15 to 17 years. This series is an attempt to give you a familiarization on DGCA syllabus and to help you gain clarity and understanding towards the concept. We at CPSC believe in deep-rooted understanding, right concept with right clarity. Welcome to your zone, Future Pilot Zone. And at CPSC, we promise you to take flight with knowledge. Hello, future aviators. Welcome to day 2 on Aviation Med series. In the last class, we discussed about atmosphere, atmospheric thermal structure. We discussed about troposphere and stratosphere. If you have missed the lecture, group description में आप चले जाइए. Link is shared. Please go through it and then come back on this second day. Today we'll take the topic of tropopause. So yes, guys, what is a tropopause? Tropopause is a boundary between troposphere and stratosphere. Now this boundary word is really important because this is your DGCA question. What is a tropopause? And people comfortably write it's a layer between troposphere and stratosphere. No, it is not a layer, it's a boundary. So keep this in mind. Next, you have seen that I have separated tropo and pause for you. What is the meaning of pause? Pause का मतलब क्या होता है? रुक जाना. अब रुक जाना का मतलब ही यहाँ पे ये है कि टेम्परेचर रुक जाता है. Now, if you increase in height, if you increase your altitude, temperature will stop to change. Temperature pause हो जाता है, temperature constant हो जाता है. And therefore, tropopause is indication of isothermal layer. Sorry, it's not a layer. Isothermal. Isothermal means iso means equal, thermal means temperature. So at tropopause, you have a constant temperature or same temperature value. Let's proceed now. This is very important. जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम देखते हैं कि पहली बात तो इट्स अ बाउंड्री. सेकेंडली, height of tropopause. Height of tropopause is not constant, it is variable. And on what factors does it depend upon? It depends upon temperature. Temperature at the surface. How it is related with the temperature? जितना टेम्परेचर सरफेस का गर्म होगा, ट्रोपोपॉज की हाइट उतनी ज़्यादा होगी. तो yes, temperature is the determining factor. Warmer the air, higher the tropopause. जहाँ अगर आपका एयर गर्म है या सरफेस टेम्परेचर वार्म है, डेफिनेटली कर उसके ऊपर की एयर गर्म हो जाएगी. सो से एग्जांपल इक्वेटर पे सरफेस टेम्परेचर इज़ वेरी वार्म, तो वहाँ की जो ट्रोपोपॉज हाइट है वो और ऊपर चली जाती है. दैट इज 16 to 18 किलोमीटर्स. वहीं पे पोल्स है, पोल्स का सरफेस टेम्परेचर आपका कम है, मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव 50 डिग्रीज 40 डिग्रीज. सो उसकी ट्रोपोपॉज हाइट जस्ट हाफ हो जाती है. इट इज़ अराउंड 8 to 9 किलोमीटर्स. सो ट्रोपोपॉज डिपेंड्स अपॉन लैटिट्यूड, सीजन, लैंड एंड सी. सब कुछ वेरी करेगा क्योंकि आपका टेरेन का टेम्परेचर कैसा है, उसके हिसाब से आपके एयर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर, उसी के हिसाब से ट्रोपोपॉज का टेम्परेचर. सो इज दिस क्लियर? सो वन थिंग इज क्लियर, हायर द warmer the surface, warmer the air, higher the tropopause. Colder the surface, colder the air molecules, lower the tropopause. तो इस हिसाब से हम क्या समझते हैं, हमारी ट्रोपोपॉज की हाइट कहाँ ज़्यादा है? हमारी ट्रोपोपॉज की हाइट इक्वेटर पे ज़्यादा है और पोल्स पे कम है. कितनी है? ऑलमोस्ट हाफ. इक्वेटर पे है 18 to 19, पोल्स पे है 8 to 9. आगे बढ़ेंगे. नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज फोल्ड्स. यहाँ पे आपको दिख रहा है गाइज, एक वर्ड है फोल्ड्स. सो देर इज सम वेरी मच
प्राइमरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड फोल्ड का मतलब क्या होता है. लेट्स सी. आई होप यू कैन सी द डायग्राम हियर. यहाँ पे जो प्रोमिनेंट डिफरेंस है ट्रोपोपॉज की हाइट में, वो है एक 40 डिग्री पर, एक 60 to 70 डिग्री पर इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई. हम देख सकते हैं कि गर्मियों में देर इज चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन द ट्रोपोपॉज हाइट और ड्रॉप इन द ट्रोपोपॉज हाइट from 52,000 feet to 43,000 feet, whereas in winters it is a drop from 52,000 feet to 37,000 feet. तो winters में ये drop ज़्यादा हुआ है because temperature gradient हमेशा temperature contrast winter में ज़्यादा होता है compared to summers. एक और चीज़ winters में होती है, जो अर्थ की पोजीशन है सन के रेस्पेक्ट में, it is nearest to the sun in its orbital plane in the month of January. Keep this in mind. Okay. तो ये जो abrupt fall in temperature है, इसको ही कहते हैं folds, and ये fold बहुत primary होता है क्योंकि jet streams blow in this fold. तो जहाँ पे भी fold है वहाँ पे क्या होगा, jet streams blow करते हैं. आगे बढ़ेंगे. अगर हम इक्वेटर के टेम्परेचर की बात करें और पोल्स के टेम्परेचर की बात करें, तो यहाँ पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन आती है जो मैं अंडरलाइन कर दूँ आपके लिए. दैट इज द टेम्परेचर एट द पोल्स एंड एट द इक्वेटर इट इज़ वेरिएबल. कितना टेम्परेचर है देख रहे हो. एट द इक्वेटर इट इज़ -80, whereas at the poles it is just -40 और -50. तो ऐसा क्यों हो रहा है. जब सरफेस पे इक्वेटर पे टेम्परेचर +50 है, तब भी इक्वेटोरियल ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर -80 है, और जबकि पोल्स के सरफेस पे टेम्परेचर माइनस में है, नेगेटिव में, बावजूद उसके पोलर ट्रोपोपॉज पे टेम्परेचर -40 है. व्हाई इज दिस? एनी आइडिया? सोचो. ओके, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर करेंगे. ट्रोपोस्फियर में कौन सा पैरामीटर होता है थर्मल स्ट्रक्चर में? What do you have? जो मैं लिख रही हूँ उसको क्या कहते हैं बताइए. Yes, you said it right. This is lambda. Lambda means lapse rate, temperature lapse rate. तो क्या हो रहा है ट्रोपोस्फियर में? टेम्परेचर is falling with increase in height. क्योंकि पोलर ट्रोपोपॉज की हाइट आधा ही दूर है इक्वेटोरियल ट्रोपोपॉज से. पोलर ट्रोपोपॉज में लैम्डा या लैप्स रेट कम दूरी पर तक जा रहा है, तो इसलिए अराउंड -40 to -50 पर पोलर ट्रोपोपॉज का टेम्परेचर को देखा जाता है. whereas equatorial tropopause is at double height. So in spite of the surface being warm, you have a longer distance जहाँ आपका क्या है, लैप्स रेट है. और क्योंकि आपका लैप्स रेट इतना ज़्यादा है, इसीलिए आपका इक्वेटोरियल ट्रोपोपॉज -80 डिग्री सेल्सियस रीड करता है. सो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ हमने कवर किया. Why equatorial tropopause is colder than polar tropopause. I hope you have understood. Let's proceed. Okay. Next, we will take up what is the significance of the tropopause height. अभी हमने देखा ट्रोपोपॉज हाइट वेरिएबल है, पर ट्रोपोपॉज हाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. वो ये है कि फर्स्टली ट्रोपोपॉज हाइट क्लाउड के मैक्सिमम हाइट को सिग्निफाई करता है. यूजुअली हमने कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर. तो ट्रोपोपॉज इज द बाउंड्री और इट इज द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर. देयरफॉर फर्स्टली सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम बात करते हैं वो ये है कि इट सिग्निफाइज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सिग्निफिकेंट क्लाउड. सिग्निफिकेंट क्लाउड मतलब क्लाउड इज ऑफ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस, और सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस वाले क्लाउड कौन से होंगे? जो वेदर कंटेन करते हैं. सो येस, हमारे सीबी क्लाउड्स, टावरिंग क्यूमुलस क्लाउड्स, ये सारे सिग्निफिकेंट क्लाउड्स हैं, और ये इसका मैक्सिमम हाइट डिनोट करता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो ट्रोपोपॉज है ये जेट स्ट्रीम्स के प्रेजेंस को भी डिनोट करता है. क्यों जेट स्ट्रीम्स? क्योंकि जेट स्ट्रीम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट एट
or near the tropopause. और जो हमने फोल्ड्स की बात की थी अभी 5 मिनट पहले, तो ये जो फोल्ड्स है वो आपके जेट स्ट्रीम्स को सिग्निफाई करता है कि आपकी जेट स्ट्रीम्स इस लैटिट्यूड पर बेस्ड। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ CAT या टर्बुलेंस। तो ये जो आपका टर्बुलेंस है ये भी जेट स्ट्रीम से एसोसिएटेड है और ये ट्रोपोपॉज तक सिग्निफाई करते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम विंड स्पीड। जब हम जेट स्ट्रीम की बात करें तो जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम इज अ स्ट्रीम ऑफ विंड मूविंग विद अ जेट स्पीड। यस, तो मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो जेट स्ट्रीम्स में होती है, वो 60 नॉट से शुरू होती है एंड मैक्सिमम 300 नॉट तक भी रिकॉर्ड हुई है। तो यस, आपकी मैक्सिमम विंड स्पीड होती है ट्रोपोपॉज पर। सेकेंड रीजन ट्रोपोपॉज पे विंड स्पीड मैक्सिमम होने का है, लोअर डेंसिटी। Whenever density reduces, your speed increases. And lastly, it is the upper limit of most of the weather. Yes. So this is the significance of tropopause. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ISA पर। Hello everyone, this is Riya Raghuvanshi here. I have joined CPSC from the April batch and it's been approximately 2 months since I have joined, and my journey with CPSC has been really great. Alongside, I would really like to appreciate Preeti ma'am's efforts into me. She has helped me a lot, she has groomed me a lot, and I believe with her guidance I can clear papers in my first go. Also, I would like to especially talk about the environment in CPSC. It's been really nice, everyone's so friendly and helpful, and it has improved me a lot. Well, I would like to say, go through your research, but you will actually come here only. But I really think if you join CPSC, it's gonna be a great journey, as it was for me, and it will be for you. I am currently studying my subjects such as air regulation and air navigation, and I'm hoping to pass all of them in my September attempt. So I would like to thank Preeti ma'am for all the guidance, for grooming my confidence, and all the effort she has put into me. So thank you for that.